So I welcome you all once again to today's session. So let me share the screen first. Hope the screen is visible. So till now we have done in plantation and horticulture, various types of plantations, horticulture, that is types of fruits, types of vegetables. We have seen the classification. We have seen the propagation principles. We have seen various types of cultural practices that are conducted in plantation and horticulture crops. That is most important ones. And then we have seen, what did we see? About the maturity, how and when it has to be done, harvesting and all that. And now we have started with the no, we have also seen the orchard management. As part of that, we have seen the different kinds of irrigation, different kinds of methods of orchard management, different kinds of drainage systems, etc. All again important. So and after that we have started with harvesting, and now we are with post harvest. Post harvest में भी बहुत कुछ हमने कर लिया है. Okay. लाइक प्री कूलिंग मेथड से हमने स्टार्ट किया है. सबसे पहला स्टेप होता है इन द कोल्ड चेन मैनेजमेंट. ओके, उस इसके बाद ही ये मेजर फर्स्ट स्टेप है बिफोर सेंडिंग इट फॉर कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन में जो दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन भी करना है तो ठीक है. नाउ इन दैट वी हैव डन वेरियस काइंड्स ऑफ प्री कूलिंग मेथड्स एंड इवेपोरेटिव कूलिंग का थोड़ी बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था. And here we'll be looking into evaporative cooling and various other methods of post-harvest technologies. ठीक है. So evaporative cooling, as I have said earlier, जैसे आप जब sweating होती है तो fan के नीचे आप बैठते हो तो what will happen because of that evaporation? You'll feel that coolingness, right? Your body temperature will come down. The same principle is applied here. It's an inexpensive and effective method of lowering produce temperature, that is of the horticulture produce. It is most effective in areas where humidity is low. So dry air is drawn through moist padding or a fine mist of water, then through vented containers of produce. As water changes from liquid to vapor, it absorbs the heat from the air, thereby lowering the produce temperature. जो मैंने बताया था same. The incoming air should less than 65% RH relative humidity for effective evaporating cooling. It will only reduce temperature to 10 to 15 degree Fahrenheit. उतना तक temperature reduce कर सकता है. ठीक है. And this method would be suitable for warm season crops requiring warmer storage temperatures, 45 to 55 degree Fahrenheit, tomatoes, peppers, cucumbers और एग प्लांट. नाउ इवेपोरेटिव कूल स्टोरेज में भी हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके, आज के डेट में विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो एनर्जी कूल चेम्बर्स. और मिट्टी फ्रीज जैसे कुछ बहुत सारे सुना होगा आपने अपने अपने इसमें. सो दिस इज व्हाट इट इज. एज यू कैन सी हियर, दिस इज ये दिस इज द आउटर क्ले पॉट एंड दिस इज द इनर क्ले पॉट. एंड जो ये दोनों क्ले पॉट्स के बीच में पूरा सैंड भर देते हैं. ओके, and in this sand they keep on watering it, and एक wet cloth, and इस पूरे inner clay pot में you can put all the vegetables and put a wet cloth on that. And whenever the this watering is done, okay, because of the moisture that evaporates, यहाँ से जब भी हवा लगेगा यहाँ से evaporation होगा, क्योंकि क्ले पॉट्स में क्या है, पोरस नेचर होता है. दैट्स व्हाई आर वाटर इन क्ले पॉट्स दे आर कोल्ड, राइट. हम लोग विंटर समर्स में करते हैं ना, क्ले पॉट में पानी रख के उसी को पीते हैं. टेस्ट भी उसका अच्छा रहता है एंड ऑल्सो वाटर भी कोल्ड रहता है. इतना बाहर टेम्परेचर रहने के बाद भी उसमें पानी ठंडा रहता है. वाई? बिकॉज ऑफ द स्पोरस नेचर ओनली दैट वाटर कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो उससे क्या होगा, इट विल ड्रॉ दैट हीट from the water that is inside the pot, thereby cooling it down. Okay, so the same principle is applied here. So because of which जो temperatures है यहाँ पे बाहर से at least 10 to 15 degree Fahrenheit कम रहते हैं, thereby उनका shelf life ज्यादा रहता है. ठीक है. One, it is the best short term storage of fruits and vegetables at farm level. Farm level पे storage करने के लिए बहुत ही अच्छा है. Evaporative cooling chambers. These are all evaporative cooling chambers, also known as zero energy cool chambers. These are a type of evaporative cooler because evaporation, the principal evaporation उसी के ऊपर ये basis है, which is simple and inexpensive ways to keep vegetables fresh without the use of electricity. इसके लिए कोई electricity की जरूरत नहीं है.
and this will improve vegetable storage life also. ये बड़े, ये तो बहुत छोटा है. Even on large scale also this can be done, as you can see here. यहाँ से same एक बाहर का brick lining and inner वाला brick lining, double bricked wall है ये, बीच में cavity है. In that they have filled with wet sand. Again इसमें कोई coating नहीं होती. Again bricks, they are highly porous in nature. So the water keeps on evaporating, and because of which इसमें जो temperature है that can be maintained at lower levels when compared to the outside temperatures. And इसमें trace में, as you can see here, food can be kept. ठीक है. And इसके बाद there are various other ways to keep the produce fresh. तो वो सारे अभी next stages में आते हैं. एक तो evaporative cooling हो गया. Now they can be subjected to various other methods like waxing, as you can see here. यहाँ पे वैक्सिंग का कोटिंग देते हैं. अगेन दिस विल वैक्सिंग कोटिंग देने की वजह से द पोर्स, द टाइनी पोर्स ऑन द प्रोड्यूस, दे गेट क्लॉग्ड, बिकॉज ऑफ विच कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होता है. अब गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, देयर वोंट बी एनी रेस्पिरेशन पॉसिबल. सो दैट नो रेस्पिरेशन, no deterioration. So the same is followed. Waxing generally reduces the respiration and transpiration rates, but other chemicals such as fungicides, growth regulators, preservatives can also be incorporated specially for reducing microbial spoilage, sprout inhibition, etc. ठीक है, waxing उसके लिए भी use कर सकते हैं. However, it should be remembered that waxing does not improve the quality of any inferior horticulture product, but it can be beneficial adjunct to good handling. Handling के लिए ऐसा नहीं कि कुछ खराब वाले को भी waxing से हम अच्छा बना सकते हैं हाई क्वालिटी का, वैसा नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा क्यूरिंग. क्यूरिंग भी एक प्रोसेस है. It's an effective operation to reduce the water loss during storage from hardy vegetables like onion, garlic, sweet potato and other tropical root vegetables. You must have seen, जब भी onions या garlic हम लोग harvest करते हैं, along with the leaves, they are kept dried like this. ऐसा नहीं कि पूरा ये पूरा निकाल के clean करके रखते हैं. No, they generally tend to keep it like this only. This what will happen, एक लेयर टाइप का हो जाता है एंड दैट विल हेल्प प्रिवेंट द इनर मॉइस्चर. इस तरह से ईयर लॉन्ग स्टोर करते हैं विलेजेस में. ओके. एंड बिल्कुल ओपन में ही, फिर भी ये ईयर राउंड फ्रेश रहते हैं अनियंस एंड गार्लिक. The curing of root and tuber crops develop periderms over cut, broken or skinned surface wound restoration. एंड इसी को ट्यूबराइजेशन भी बोलते हैं. जैसे पोटैटोस में होता है एक वाइट लेयर का हार्ड लेयर आ जाता है, मतलब कहाँ पे भी कट्स होते हैं तो वहां पे सेल्स सेक्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्यूबरिन, एंड वो पूरा वाइट कलर का हो जाता है. एंड इफ यू कट देयर यू विल फाइंड दैट इन द इनसाइड ऑफ दैट पोटैटो इट विल बी वेरी गुड, बिल्कुल फ्रेश रहता है. बिकॉज दिस कट, बिकॉज ऑफ दैट सुबराइजेशन, बिल्कुल पैचअप टाइप का हो जाता है. दैट विल प्रोटेक्ट दैट पोटैटो फ्रॉम एनी एक्सटर्नल माइक्रोबियल एंट्री एक्सेट्रा. ओके. सो उसी तरह से जो इसके ऊपर भी एक पतला सा लेयर टाइप का बन जाता है, पेरिडर्म इट्स कॉल्ड एज, एंड दैट विल हेल्प इन बिल्कुल restoring the water inside itself without making them evaporate, the water evaporate, moisture evaporate. It helps in the healing of the harvest injuries, reduce loss of water and prevents the infection of decay by decay pathogens. Onions and garlic are cured to dry the necks and outer scales. For the curing of onion and garlic, the bulbs are left in the field after harvesting under shade for a few days until the green tops, outer skin and roots are fully dried. एंड कभी कभी वो घर में ही बाहर ही ऐसे वो टांग देते हैं, नॉर्मली हवा से ही वो धीरे धीरे से ड्राई होते रहते हैं. ठीक है. अगर स्टोर करके बाद में बेचना है तो देन दे विल डू दैट इन द कहाँ पे, इन द फील्ड इटसेल्फ, एंड सेंड फॉर हार्वेस्टिंग, सॉरी सेंड फॉर मार्केटिंग. ठीक है. इसके अलावा प्री पैकेजिंग, दिस टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन एंड हेंस कीप्स द कमोडिटी इन फ्रेश कंडीशन बोथ एट एम्बिएंट एंड लो टेम्परेचर्स. बिकॉज इधर इस प्री पैकेजिंग में क्या है, इधर पूरा हवा निकाल देते हैं और समटाइम्स दे ऐड ऑक्सीजन इनहिबिटर्स. ओके. और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर्स, इस तरह से तरह तरह के, these are all natural only, coal powder, calcium carbonate powder, उस तरह से वो भी use करके they can do this, and this will help in reducing the oxygen, at the same time removal of the carbon dioxide, thereby respiration को bring down कर रहे हैं,
एंड दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। और वैक्यूम में पैकेजिंग करना, आजकल ये बहुत चल रहा है वैक्यूम में, बिल्कुल उसमें से हवा निकाल देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं पैकेजिंग को, बिल्कुल प्लास्टिक का एक कवर डाल के, दैट ऑल्सो नो एयर नो रेस्पिरेशन, सो दिल कंप्लीटली एक वैक्यूम वाले एनवायरमेंट में रहते हैं पूरा प्रोड्यूस। ओके, दिस ऑल कम अंडर controlled atmospheric pressure package, controlled atmospheric packaging and modified atmospheric packaging। जब हम लोग इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का टॉपिक करेंगे ना, उसमें एक टॉपिक है स्पेसिफिकली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें सीरियल्स को किस तरह से स्टोर करते हैं, जैसे साइलोस एंड वेरियस अदर स्ट्रक्चर्स। ओके, उसी तरह से हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को भी किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ स्टोर करते हैं, उसमें आता है मॉडिफाइड मैप एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, मैप एंड कैश। उसमें हम लोग डिटेलली करेंगे ये पूरा, बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के पैकेजिंग की वजह से विल बी एबल टू एनहांस और इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द पेरिशेबल गुड्स लाइक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद आता है कोल्ड स्टोरेज। नाउ एक्सक्लूसिवली दीज आर यूज्ड टू स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग दैट लो टेम्परेचर। एंड वी ऑल्सो नो दैट जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता रहता है, वैसे वैसे रेस्पिरेशन रेट भी लो होता रहता है। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा। सो लो टेम्परेचर्स में दीज आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद आता है कोल्ड चेन, द एंटायर, मतलब राइट फ्रॉम द फ्रेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस which has been harvested from the crops till it reaches the consumer, that would be completely in cold, मतलब ऐसे कंटेनर्स में मेंटेन करते हैं वेयर दे विल हैव लो टेम्परेचर, सिंपल टर्म। सो यह प्रोड्यूसर से वेयर हाउस जाएगा, वेयर हाउस से पैकिंग सेंटर जाएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, रिटेलर, कंज्यूमर, ऑल दिस वेयर एवर दैट इज गोइंग राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर, यहाँ से जब निकलेगा तो टिल द टाइम इट रीचेस कंज्यूमर, दिस वुड बी maintained at low temperatures only at every step, each step that would be, the produce would be kept in such conditions where there are low temperatures. Okay, this will decrease the respiration, okay, this will decrease the transpiration, thereby increase the shelf life. ओके, सो मैंने अभी सबसे बोल रही हूँ कोल्ड चेन करके, कोल्ड चेन मतलब ये पूरा चेन में वो मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड कई बार ऐसा होता है कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले ही देर आर फ्यू ऑपरेशंस, लाइक हमने देखा एक वैक्सिंग कर सकते हैं एंड क्यूरिंग, ये सब भी करते हैं। एंड एक और प्रोसेस है दैट इज इरेडिएशन। Okay, here we expose the fruits and vegetables to ionizing radiation like gamma rays at optimum dosage delays, मतलब बहुत ही कैलकुलेटेडली करते हैं एंड इसलिए हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए ही ये करते हैं। एंड मेजरली दिस इज डन फॉर दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड, क्योंकि बाहर जब भी भेजते हैं एवरी कंट्री हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल एंड क्वारंटाइन का भी देखना पड़ता है दैट देर आर नो पैथोजन, सो कंप्लीट पैथोजन फ्री प्रोड्यूस को ही वो एंट्री करने देते हैं, फॉर विच इरेडिएशन इज अ मस्ट। अभी रिसेंटली एक बड़ा सा इरेडिएशन सेंटर एक गुजरात में लॉन्च किया गया था एंड जो भी मटेरियल वहां जाता है फर्स्ट दैट इज प्रोड्यूस इट विल बी इरेडिएटेड, देन दे आर पैक्ड एंड एक्सपोर्टेड। सो इसमें ये एक ही प्रोसेस है, एज यू कैन सी हियर, लाइक योर गामा रेज कैन बी यूज्ड एंड, लेकिन उसका बहुत सारे यूजेस है। लाइक एक तो क्वारंटाइन हो जाता है, मतलब कंप्लीटली पैथोजन सारे मर जाते हैं उसमें, कुछ भी छोटे मोटे हैं, पैथोजन रिडक्शन हो जाता है, इससे क्या है शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन होता है। एंड इस इंसेक्ट डिसइंफेक्टेशन, अगर कुछ इंसेक्ट्स भी है एक आधा, दैट ऑल विल बी किल्ड। स्प्राउट इनहिबिशन, लाइक योर अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक में ये स्प्राउट्स भी आने से बिल्कुल वो कर देता, मतलब इट विल सैनिटाइज। सो इनमें अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक में स्प्राउट इनहिबिशन हो सकता है। इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन, सीरियल्स, पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट्स, शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन, चिकन, मीट, फिश एक्सेट्रा, पैथोजन रिडक्शन लाइक स्पाइसेस एंड फ्रेश फूड्स, क्वारंटाइन फॉर फ्रूट। सो कई सारे के लिए एक इरेडिएशन एंड it also causes disinfectation, treatment and control fruit fly and citrus, mango, seed wheel, papaya, fruit fly etc. कि कई बार ये insects eggs
उसमें ले करके चले जाते हैं ना, एंड दैट माइट बी देयर, सो ऑल दैट वुड बी डन सो दैट क्वारंटाइन का जो मेजर इश्यू दैट कैन बी रिजॉल्व। उसके बाद अभी लेटेस्ट मेथड्स भी आ रहे हैं, लाइक योर एडिबल कोटिंग्स। Now these are continuous matrices prepared from edible materials such as proteins, polysaccharides and lipids. Continuous matrices मतलब बिल्कुल बीच में इतना सा भी गैप नहीं रहता है, मतलब पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। जिससे क्या है, द ऑक्सीजन कैन नॉट एंटर, ओके, जो ऑक्सीजन है वही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर जो ट्रांसपिरेशन है दैट कैन नॉट रिलीज। सो इससे क्या होता है, द फ्रेशनेस ऑफ द प्रोड्यूस कैन बी सेव्ड। एंड कई बार हम लोग जब वैक्सिंग ये सब करते हैं विच इज इनएडिबल, ओके, तो हमें उसको फिर अच्छे से क्लीन करके ही खाना पड़ता है ना। एडिबल कोटिंग्स में क्या है, दे आर एडिबल, सो डायरेक्टली हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। एंड दिस एडिबल कोटिंग विल नॉट अलाउ any of these to enter, that is insects, pathogens, etc. They can use as film wraps and when consumed with the food become an ingredient of the food itself. Various edible coatings were applied successfully for preserving of food, fruits and vegetables such as orange, apples, grapefruit, cherries, cucumbers, strawberry, tomato and capsicum were applied successfully, and edible coating of fruits and vegetables was success. And these edible coatings are mainly divided into three major classes. एक तो hydrocolloids like your polysaccharides, okay, proteins etc, they fall under this, and दूसरा है lipids, oil related, okay, fatty acids, acrylglycerides etc, and third है composites, मतलब दो अलग अलग materials को use करके कोटिंग बनाते हैं, लाइक प्रोटीन, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन, मतलब पॉलीसैकेराइड्स तो हमारे हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड दैट इज आपके फैट्स हो गए, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं इस एडिबल कोटिंग, ठीक है ना। ये एक तरीका है फ्रेश अगर चाहिए तो। अदरवाइज अगर हमें लग रहा है कि ड्राइड में भी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चलेंगे, देर दे विल फॉलो some other principle, and that is dehydration. Dehydration means the process of removal of moisture by application of artificial heat under controlled conditions of temperature, humidity and airflow. Airflow nahi, airflow. And in this process, a single layer of fruits or vegetables, whole or cut into pieces or slices, are spread on trays which are placed inside the dehydrator. ये आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, नेचुरली सन ड्राइड, ओके, शेड ड्राइंग एक्सेट्रा। वही आर्टिफिशियली करना है तो दैट कैन बी डन in the dehydrators where the temperatures are maintained. So the initial temperature of the dehydrator is usually 43 degrees centigrade, which is gradually increased to 60 to 66 degrees centigrade in case of vegetables and 66 to 71 degrees centigrade in case of fruits. And then they'll be dried. After that again they'll be packed and sent for marketing. Okay. जैसे भिंडी का अभी डिहाइड्रेटेड वाले वर्जन आ रहे हैं, एंड बहुत पुराने से, ये तो अभी नए नए दिखा रहे हैं, बट अर्लियर इफ यू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके स्टोरीज सुनेंगे ना, यू नो, आई हर्ड अ लॉट फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स कि उस टाइम पे वेजिटेबल्स ये सब मतलब बहुत कम मिलते थे। सो दे यूज टू सन ड्राई द टोमेटोज, जब भी बहुत ज्यादा मार्केट में होते थे, दे यूज टू कट द टोमेटोज, पुट सम सॉल्ट एंड टर्मरिक एंड यूज टू ड्राई देम and they used to store them, and whenever there is मार्केट में बिल्कुल सब्जियां नहीं मिल रही है, then they used to use that. कॉक्सिनिया का भी ये बहुत ज्यादा यूज होता था, भिंडी का भी यूज करते थे, मैंगो तो अभी भी करते हैं आमचूर के लिए, ड्राइड मैंगो वाला, एंड ऑल दीज ये नेचुरल हमारे एंसेस्टर्स ने किया है, बट नाउ वी आर अगेन एक मॉडर्न ट्रेंड की तरफ फिर इसको लेके आ रहे हैं, नथिंग एल्स। सो डिहाइड्रेशन ही कई तरह का डिहाइड्रेशन होता है, लाइक ये शेड ड्राइंग, पहले तो शेड ड्राइंग ही होता था, okay, so it is carried out for products which can lose their color or turn brown if put in direct sunlight. direct sunlight में बहुत रेयरली रखते हैं, नॉर्मली शेड ड्राइंग ही करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि फिर उनका वो जो कलर है ना वो चेंज नहीं होगा। फिर भी थोड़ी बहुत हो जाता है, टू अवॉइड दैट दे अप्लाई सम सॉल्ट और टर्मरिक एक्सेट्रा। जनरली वेजिटेबल्स को करते हैं इंडियन कंडीशंस में। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन मतलब, ऑस्मोटिक मतलब उसमें से मॉइस्चर किस तरह से निकालते हैं, बाय क्रिएटिंग दैट ऑस्मोसिस। वो किस तरह से करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन में, दैट इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन और हेवी शुगर सॉल्यूशन। जैसे हेवी शुगर सॉल्यूशन में कौन सा आता है, आंवला मुरब्बा, राइट, आंवला मुरब्बा ये बहुत फेमस है, जो आंवले को पूरा पूरा अच्छे से उसको प्रिक करके बॉईल करते हैं, फिर दे आर पुट अंडर हेवी शुगर सॉल्यूशन। इससे क्या है, 1-2 साल अच्छे से चल जाते हैं विथ ऑल द न्यूट्रिशन इंटैक्ट।
जिंजर का भी मुरब्बा आता है, उसमें क्या है, दे ऐड शुगर एंड ड्राई इट आउट, तो ड्राइड फ्लेक्स की तरह मिलते हैं जिंजर का मुरब्बा। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन में लाइक पिकल्ड क्या बोलते हैं, खीरा, ये सब करते हैं, और पिकल्ड कुकुम्बर्स, ये सब उसमें करते हैं, मतलब हेवी सॉल्ट सॉल्यूशन में या फिर विनेगर सॉल्यूशन में they'll put it, and after that these materials are sun dried or solar dried as per like your in इसमें इन्होंने दिया है पाइनएप्पल पीसेस, जिंजर स्लाइसेस एक्सेट्रा। ओके, उनको ड्राई भी कर सकते हैं या फिर उसी तरह से हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक और ऑपरेशन जो जनरली डन हियर, दैट इज ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग में क्या है, उसका कलर को सेव करने के लिए, टू प्रिजर्व द कलर ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ इन दिस केस यू आर सेइंग द ब्रोकली, अब इसका हमें कलर सेव करना है। ओके, नॉर्मली ब्रोकली को ऐसे ही ड्राई करेंगे तो बिल्कुल ब्राउनिश डार्क ब्राउन, बिल्कुल वो कलर देख के अच्छा नहीं लगता है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट कलर, okay, what they do is they go for blanching। blanching में क्या है, exposing the vegetables to hot or boiling water as a pre-treatment before drying। it helps clean the material। ज्यादा उसमें बॉईल होने नहीं देते, बस डाल के निकाल के इमीडिएटली कोल्ड वाटर में डाल देते हैं, and reduce amount of microorganisms that are present on the surface। now it preserves the natural color of the dried products, for example the carotenoid orange and yellow pigment that will dissolve in small intracellular oil drops during blanching, and in this way they are protected from oxidative breakdown during drying। very very important। तो उसमें क्या है, जो भी पिगमेंट्स होते हैं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट पिगमेंट्स, ओके, एंड ये पिगमेंट्स बिल्कुल पानी में हॉट वाटर में डालते ही दे डिजोल्व, राइट। सो वो स्मॉल इंट्रासेल्युलर ड्रॉपलेट्स जो उसमें प्लेसेस में है ना, उसी सेल्स में वो ब्लॉक हो जाते हैं। वाई, बिकॉज ये मेल्ट हो गए, वो बाहर आने से पहले ही वी आर पुटिंग देम इन कोल्ड वाटर, बिल्कुल वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। सो नाउ दे आर बिल्कुल सेफ है in the cells, and now they can't go for any breakdown। जो जनरली बाहर ड्राइंग के लिए रखते ही ऑक्सीजन वो सब अवेलेबल होने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, दैट कैन बी अवॉइडेड। ओके, ड्यूरिंग द ड्राइंग इट शॉर्टन्स द सोकिंग और द कुकिंग टाइम ड्यूरिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या होता है, बाद में जब आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो ना, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोकोली ही है या फिर कैरेट है जिसका कलर वो सब हम लोग सेव करके कर लिए। नाउ द ड्राइड कैरेट्स यू हैव, यू वोंट ईट इट डायरेक्टली, अगर फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो पानी में डाल दोगे थोड़ा वार्म वाटर में, बिल्कुल वो एग्जैक्ट फ्रेशनेस तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो टेक्सचर है दैट विल बी लिटिल बिट बेटर देन द ड्राइड वंस व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड इजीली। and during hot water blanching some soluble constituents are leached out like water soluble flavors, vitamins, sugars etc। ये एक डिसएडवांटेज है इसमें, जहां पे भी वाटर soluble वाले एलिमेंट्स होते हैं देयर माइट बी अ चांस दैट कि वो उसमें से निकल जाने के चांसेस है। okay, now there are various chemicals that can be used to increase the shelf life of fruits and vegetables like your ethylene absorbents। now ये ethylene absorbents क्या करेंगे, you know that ethylene is one of the gaseous phytohormone which is gaseous in nature, and that helps in ripening of the fruits and vegetables। so अगर, क्योंकि ethylene अगर रिलीज करता रहेगा तो फिर उसका वो डिटीरिएशन शुरू हो जाएगा। So in order to reduce that, because ethylene is also one of those that is responsible for decreasing the shelf life of the fruits and vegetables, so for which some ethylene absorbents उसमें डाल देंगे तो what will happen in that packet, एक पैकेट है उसमें ये vegetables and fruits है, तो उसमें ethylene absorbent डालने की वजह से that will keep on absorbing the ethylene gas that is being released by these fruits and vegetables। so उससे क्या है, now because of that उसका राइपनिंग तो हेजन नहीं होगा, देयर बाय शेल्फ लाइफ अच्छे से रहेगा। like your KMNO4 at the rate 100 ppm soaked filter paper can minimize ripening and increase the shelf life in banana। this method is very useful। ये पोटेशियम मैंगनेट है आई थिंक, 1 सेकंड में एक बार चेक कर लेती हूँ, मेरा ना थोड़ा सा फॉर्मूला से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, 1 सेकंड में अपने नोट्स में चेक करूँगी, 1 सेकंड। यस, पोटेशियम परमैंगनेट मैं लिख देती हूँ।
ओके। उसके साथ साथ इफ वी कैन ऐड एंटी फंगल एजेंट्स, तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर जो बिल्डअप होता है पैकेजिंग में, इन दैट देर वोंट बी एनी चांस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, देयर बाय उनका शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकता है, लाइक सोडियम ऑर्थोफिनाइलफिनेट, डाइफिनाइल रैप्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मोल्ड्स स्टेम एंड रॉट, डाइब्रोमो ब्रोमोली, ये डाइब्रोमो टेट्राक्लोरोइथेन, ये टी है नॉट एल, एंड एस्टर्स दे गिव बेटर फ्लेवर एज वेल along with protecting them from the fungus। ठीक है। ना ये हो गया हमारा किस तरह से सेव करना है, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को। ओके, एंड फूड प्रिजर्वेशन भी हम लोग कर सकते हैं बाय हीट और फ्रीजिंग, दोनों तरह से। हीट से किस तरह से कर सकते हैं, there are two major types. An application of heat to the food leads to destruction of microorganisms. The specific treatment varies with the organism that has to be killed, the nature of the food to be preserved, and other means of preservation that may be used in addition to high temperature. सो ट्रीटमेंट अगेन वेरीज, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे नहीं कि कोई भी आप ले आके हम बोलेंगे कि विल यूज द हीट। ओके, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरियल्स है, ठीक है। सीरियल्स में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उसका बिल्कुल हाई टेम्परेचर्स पे वो करके हम उसको मार देंगे उसमें, बट दैट्स नॉट पॉसिबल हियर बिकॉज वहां का बिल्कुल रिक्वायरमेंट अलग है। वही आप मिल्क को बोलोगे, मिल्क पैस्चराइजेशन करना है या हाई टेम्परेचर पे हमें उसको उबालना है, देर बाय किलिंग द प्रिजर्विंग दम फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, क्योंकि अगर बॉईल करेंगे तो एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा मिल्क। So that can be used. So according to the requirement only and the nature of the food that is being preserved, based on all these only, the principles of food preservation by heat would be deployed. So high temperatures used for preservation are usually pasteurization temperatures जो below 100 degree centigrade होते हैं, heating at about 100 degree centigrade, okay, less than 100 or sterilization temperatures about 100 degree centigrade। ठीक है। Now pasteurization, which is done below 100 degree centigrade, this will kill not uh, kills part but not all the microorganisms present, and the temperature applied is below 100 degree centigrade. That is, the heating may be by means of steam, hot water, dry heat or electric currents, and produce the cooled promptly after the heat treatments. Again after that we have to cool it continuously, हम लोग heat पे नहीं रख सकते because अगेन इसका बिल्कुल नेचर चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट का, राइट। कंटिन्यूसली रखेंगे तो इवेपोरेट होके अगेन यू कांट यूज दैट। एंड यहाँ एक और चीज हमने नोटिस किया था, एक और दिया था, अदर मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन दैट मे बी यूज्ड इन एडिशन टू हाई टेम्परेचर। सो इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा सो एज टू increase the effectiveness of the preservation. So यहाँ पे preservative methods used to supplement the pasteurization include, एक तो है refrigeration, example of milk, keeping out microorganisms usually by packing the product in a sealed container, okay। 3, maintenance of anaerobic conditions as in evacuated sealed container, same वही second point का ही है but थोड़ा अलग तरीके से। Addition of high concentration of sugar as in sweetened condensed milk, ओके। वो तो बाहर भी रखोगे तो कुछ नहीं होगा उसको, कितने एटलीस्ट 2 to 3 months का तो शेल्फ लाइफ रहता है उसका। Presence or addition of chemical preservatives like the organic acids on pickles like sodium benzoate etc, कई सारे ऐसे केमिकल्स है जो यूज कर सकते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, ओके। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ पैस्चराइजेशन। एक तो पैस्चराइजेशन हमने बोला है कि लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो उसी में दो तरह का पैस्चराइजेशन है, एक तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम अबाउ 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये बिल्कुल एकदम से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं एंड few seconds to minutes they'll hold it there and immediately they'll cool it down, okay। एक तो है लो टेम्परेचर एंड हायर टाइम और होल्डिंग मेथड, दैट इज 60 to 70 डिग्री के बीच में लेके जाएंगे, they'll hold it there for some 4 to 5 minutes or 5 to 10 minutes as per the requirement of the product and then it will be cooled down। ये दो तरह के पैस्चराइजेशन मेथड से। पैस्चराइजेशन मतलब whenever we are boiling, heating that liquid, especially milk etc, to kill the microorganisms
then that particular process is called as pasteurization. ये एक तो हो गया less than pasteurization, less than 100 degree centigrade. Now heating at about 100 degree centigrade, ये तो second method है, ये first हो गया, ये second हो गया. A temperature of approximately 100 degrees is obtained by boiling liquid food by immersing the container of food in boiling water or by exposing to flowing steam. In ये तीन तरीके से you can heat it to about 100 degree centigrade. Some very acid foods like sauerkraut may be preheated to a temperature somewhat below 100 degree centigrade, packaged hot and not further heat processed. कई सारे जो हम लोग जूसेस ये सब लेते हैं, स्पेशली फ्रूट जूसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, पहले तो उसको पैस्चराइज करते हैं बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पैकेजिंग होता है. देर बाई क्या है, बाहर से भी बिल्कुल वो फूल प्रूफ हो जाएगा, बिना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जाएगा ना, क्योंकि अंदर ऑलरेडी हमने फुल हीट करके लगाया है एंड उसी कंडीशन में हमने पैक भी किया है. देर बाय इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ. ओके, ब्लैंचिंग फ्रेश वेजिटेबल्स बिफोर फ्रीजिंग और ड्राइंग इन्वॉल्व्स हीटिंग एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जो ब्लैंचिंग हमने देखा है ना, वो भी इसी का एक पार्ट है, हीटिंग एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तीसरा आता है हमारा स्टेरिलाइजेशन, वेयर विल यूज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड. And here temperatures above 100 degree centigrade can only be obtained by using steam pressure sterilizers such as pressure cookers and autoclaves. ठीक है. Fruits and tomatoes products should be noted at 100 degree centigrade for 30 minutes so that spore forming bacteria which are sensitive to high acidity may be completely killed. Important. Vegetables like green peas, okra, beans, etc. being non-acidic and containing more starch than sugar require higher temperature to kill the spore forming organisms. Okay, in that case also they go for sterilization. Continuous heating for 30 to 90 minutes at 116 degrees centigrade is essential for their sterilization. And before using, empty cans and bottles should also be sterilized for about 30 minutes by placing them in boiling water. Okay, so this is how it is done. So continuous boiling water में भी डालने से that will have that 100 degree centigrade के ऊपर जाएगा. But अगर सही से अगर हमें 100 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर चाहिए, देन डेफिनेटली स्टीम प्रेशर स्टेरिलाइजर्स और लाइक योर प्रेशर कुकर्स एंड ऑटोक्लेव्स आर मोर यूजफुल, क्योंकि ये ओपन पैन में रहते हैं, वो जो हीट है दैट कांट बी कंटेन्ड, सो टेम्परेचर कम होता रहता है, 100 के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि 100 के ऊपर जाएगा तो दैट इवेपोरेट, राइट. सो विदाउट दैट इवेपोरेशन वी हैव टू यूज दैट स्टीम, फॉर विच प्रेशर कुकर से बेस्ट है. ठीक है. उसके बाद कई सारे और टेक्निक्स है, नो, यूजिंग द सेम लाइक योर एसेप्टिक कैनिंग, एसेप्टिक कंडीशन में कैनिंग करना लाइक योर कट वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. हॉट पैक और हॉट फिल, जहाँ पे लाइक योर क्या बोलते शुगर वाला पाइनएप्पल पीसेस इन शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, उसके लिए हॉट पैक और हॉट फिल में होता है. प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर, ये हो गया हमारा हॉट वाला अब तक. ओके, now low temperatures में microbial growth and enzyme reactions are retarded in foods stored at low temperature. The lower the temperature, the greater the retardation. Low temperatures can be produced by various processes like cellular storage. Cellular में क्या है, मतलब बिल्कुल अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड में बहुत ठंडा रहता है. So यहाँ पे the temperature in cellular underground rooms where surplus food is stored in many villages is usually not much below that on the outside air and is seldom lower than 15 degree centigrade. So यहाँ पे ज्यादा हम लोग नो कूलिंग तो ला नहीं सकते, बट येस रूट क्रॉप्स, पोटैटोज, कैबेज, एप्पल्स एक्सेट्रा दे कैन बी स्टोर्ड एट, ये टेम्परेचर उनके लिए सफिशिएंट है, बट नॉट फॉर ऑल द वेजिटेबल्स. ठीक है. दूसरा है रेफ्रिजरेटेड और चिलिंग 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो हियर चिलिंग टेम्परेचर ऑब्टेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय मींस ऑफ आइस और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन. It may be used as a main preservative methods for food or for temporary preservation until some other preservative process is applied. Either case इसी में रख सकते हैं या फिर टेम्पररी स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं. Most perishable foods including eggs, dairy products, meats, seafoods, vegetables and fruits may be held in the chilling storage for a limited time with a little change from their original condition. ज्यादा दिन रखेंगे तो क्या होगा, जो उसमें आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं. सबसे मेजर प्रॉब्लम है कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में लाइक योर टोमेटोज. अगर आपने फ्रिज में उसको ज्यादा दिन रख दिया तो क्या होगा, उसमें जो मॉइस्चर है, ओके, द वाटर कंटेंट, दैट क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाता है, एंड वो क्रिस्टल्स फॉर्म होके उसी के बगल में जो हेल्दी टिश्यू है उसको पोक करता है. मतलब आइस क्रिस्टल्स बहुत शार्प होते हैं ना उसके एडजेस,
आपने आइस का अगर शेप देखा है तो आइस क्रिस्टल्स का वेरी शार्प एजेस होते हैं उसके, ओके, सो दैट विल पोक इनटू द हेल्दी टिश्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट डैमेज होता है, दैट्स द रीजन वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना व्हेन वी रिमूव आउटसाइड दैट आइस क्रिस्टल्स, उसके बाद वो मेल्ट हो जाते हैं, okay, and again watery watery हो जाता है, so again they have to be very careful, it can be only for short term storage not for long term. Preservation by freezing, एक बार देख लेते हैं. At low temperatures below the freezing point of water, growth of the microorganisms and enzyme activity are reduced to minimum. Most perishable foods can be preserved for several months. Fruit, vegetables, juice and fleshy foods, meat and poultry and seafoods can be preserved in this method. Cold storage, we generally mean storage at temperatures above freezing point. That is, this covers a range of 16 degrees centigrade down to minus 2.2 degrees centigrade. Freezing points क्या है 4 degrees centigrade नीचे. Frozen storage, freezing is a name implies, refers to the storage at temperatures where food is maintained in frozen condition. And good frozen storage generally means minus 18 degrees centigrade or below. Important. कोल्ड स्टोरेज, नॉर्मल रेफ्रिजरेशन, ये सब 4 डिग्रीज मैक्सिमम 4 डिग्रीज के आसपास ही रहता है. बट फ्रीजिंग मतलब इट वुड बी माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड कई बार हम लोग फ्रीजिंग जो जो बोलते हैं रेगुलर यूज होने के लिए माइनस 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बोलते हैं. ओके, so frozen storage will preserve perishable foods for months or even years. Further distinctions between the refrigeration and freezing temperatures are related to microorganisms activity. So refrigeration में temperatures ज़्यादा कम नहीं रहता है, okay, and वो 16 डिग्री से माइनस 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसी बीच में रहता है. बट रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स अगर बोलेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड गो बियॉन्ड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ओके, यस, उसमें भी कई तरह के फ्रीजिंग है, मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग. शार्प फ्रीजिंग, ये सबसे पहले 1861 में यूज किया था. Involves freezing by circulation of air either naturally or with aid of fans. The temperature may vary from minus 15 to minus 29 degrees centigrade and freezing may take from 3 to 72 hours. Okay, now here यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, द आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड वन लार्ज एंड रप्चर द सेल्स, ये जो मैंने बताया था. ओके, सो नाउ व्हेन द टिश्यू इज थॉर्ड इट कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल वाटर कंटेंट. इसीलिए इसमें ये टोमेटोज उस तरह के वेजिटेबल्स को, ओके, मैंगो उस तरह से फ्रूट्स को स्टोर नहीं करते हैं. ठीक है, एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट्स टू बी शार्प फ्रोजन वर मीट एंड बटर. दूसरा है क्विक फ्रीजिंग. In this process, the food attains a temperature of maximum ice crystal formation, that is 0 to minus 4 degrees centigrade in 30 minutes or less. And इसको भी again इसमें such a speed results in the formation of very small ice crystals. इसकी वजह से minimum disturbance होता है cell structure के लिए. Okay, and इस ये भी तरह तरह के मेथड से हम लोग अचीव कर सकते हैं क्विक फ्रीजिंग को, लाइक बाय डायरेक्ट इमर्शन. ओके, ठंडे इसमें, since liquids are good heat conductors, food can be frozen rapidly by direct immersion in a liquid such as brine or sugar solution at low temperatures. Berries in sugar solution, packed fruit juices and concentrates are frozen in this manner. ये इनके लिए बहुत यूजफुल है. ओके, एंड द रेफ्रिजरेशन मीडियम मस्ट बी एडिबल, क्योंकि जिस मीडियम में डाल रहे हैं वो भी तो एडिबल होना चाहिए, वरना व्हाट विल हैपन, एडिबल नहीं है तो फिर वो वेस्टेज है, क्योंकि वी आर इमर्सिंग इन दैट. उसके बाद फिर क्लीन नहीं कर सकते ना इमीडिएटली फॉर दैट, एंड केपेबल ऑफ रिमेनिंग अनफ्रोजन एट माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो भी देखना पड़ेगा. दूसरा तरीका है बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेफ्रिजरेंट. डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आएंगे, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब वो किस में जिसमें रखेंगे उसके आसपास रेफ्रिजरेंट कूलेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब कूलेंट, उसको पास ऑन करेंगे, देयर बाय कीपिंग द जो मटेरियल है अंदर दैट वुड बी कोल्ड. सो दिस एन ओल्ड मेथड ऑफ फ्रीजिंग इन व्हिच फूड आर स्टोर्ड, the food or package is kept in the contact with the passage through the refrigerant at minus 18 to minus 46 degree centigrade flows. ठीक है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर में जो करते हैं उसी को थोड़ा हायर लेवल में. दूसरा है बाय एयर ब्लास्ट. अगेन refrigerated air would be blown across the material to be frozen at minus 18 to minus 34 डिग्री सेंटीग्रेड. आप देख सकते हो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट टेम्परेचर्स हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं. दूसरा है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, लाइक लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड नाइट्रोजन जो बिल्कुल
टेम्परेचर्स इवन टू द लोएस्ट ऑफ -60 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी मेंटेन, उसके लिए यूज कर सकते हैं, नॉट एज बिल्कुल डायरेक्टली एज रेफ्रिजरेंट। वो टेम्परेचर्स हम लोग विल बी एबल टू अचीव सच काइंड ऑफ टेम्परेचर्स। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रो फ्रीजिंग। See here, this is a process where freezing is proceeded by partial dehydration. In case of some fruits and vegetables, about 50% of the moisture is removed by dehydration prior to freezing. Then they will be frozen. इससे क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फ्रोजन फूड्स अभी आ रहे हैं, लाइक योर फ्रेंच फ्राइज एंड कई सारे अदर फूड्स, दे यहाँ वहाँ पे यही वाला प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीज ड्राइंग। इन दिस प्रोसेस फूड इज फर्स्ट फ्रोजन एट -18 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्रेस इन द लोअर चेंबर ऑफ द फ्रीज ड्रायर, and the frozen material is dried initially at 30 degree centigrade for 24 hours and then at 20 degree centigrade under high vacuum in the upper chamber. क्योंकि ओपन एरियाज में अगर उस टेम्परेचर में एक्सपोज करेंगे तो what will happen, there might be an attack of microbes etc. So to avoid that, first फ्रोजन करके उन फ्रोजन वाले को वैक्यूम में टेम्परेचर्स दिखाएंगे, उससे क्या है, दे विल कंप्लीटली ड्राई। सो डायरेक्ट सब्लिमेशन ऑफ द आइस टेक प्लेस। सब्लिमेशन मतलब क्या है, आइस से विदाउट वाटर दे विल कंप्लीटली गो इनटू वेपर स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, राइट? दैट सब्लिमेशन ऑफ द आइस टेक प्लेस विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेज। The product is highly hygroscopic, excellent in taste and flavor, and can be reconstituted readily. Okay, mango pulp, orange juice concentrate, passion fruit juice and guava pulp are dehydrated in this method only. इसकी वजह से जो हम लोग यूज करते हैं उसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन में, देन द टेस्ट, उसका फ्लेवर, टेक्सचर कुछ भी चेंज नहीं होता, ऐसा लगता है कि फ्रेश अभी लेके कर रहे हैं। ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन फ्रोजन स्टोरेज। ओके, कई बार ऐसा होता है, the unfrozen concentrated solution of sugars, salts, etc. Okay, that may ooze out from the fruits or concentrates during storage as viscous material. This is called as metacriotic fluid. बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं रहता है, वो टेस्ट भी खराब कर देता है उसका। एक तो है ये। दूसरा है फ्लक्चुएशन इन स्टोरेज टेम्परेचर्स। अगर सडनली लाइट चला गया, जनरेटर की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्ड है डेसिकेशन ऑफ द फूड एट इट सर्फेस इज लाइकली टू टेक प्लेस ड्यूरिंग स्टोरेज। बिल्कुल ऊपर वाला ड्राई हो जाता है कभी कभी फ्रीजिंग में। व्हेन आइस क्रिस्टल्स इवेपोरेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द फ्रूट, freezer burn is produced which produce appears as dry grainy and brownish spots। जहाँ पे बिल्कुल केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई एंड टफ हो जाते हैं, कभी कभी स्पॉट्स आते हैं। फ्रीजिंग -18 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग प्रोसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कुछ मेथड से किसके लिए कर सकते हैं। सुटेबल वेजिटेबल्स फॉर दिस फ्रीजिंग इज बीन्स, कॉलीफ्लावर, पीस, कैरेट एक्सेट्रा। सुटेबल फ्रूट्स, पाइनएप्पल स्लाइसेस, मैंगो स्लाइसेस और पल्प, गुआवा स्लाइसेस एंड ऑरेंज सेगमेंट्स एक्सेट्रा, उनके लिए ये फ्रीजिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है सन ड्राइंग of fruits and vegetables. Now when we talk about sun drying of fruits or vegetables, इसमें दो तरह के processes होते हैं, एक तो सल्फ्यूरिंग एंड दूसरा है सल्फाइटिंग। ठीक है। सल्फ्यूरिंग जनरली इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फ्रूट्स एंड रेयर इन वेजिटेबल्स, लाइक योर ड्राइड राइप बनाना, उसको ड्राई करके हम लोग बनाना फिग बनाते हैं, ड्राई होता है, उसको ऐसे ही खा सकते हैं। ठीक है, as a dried fruit. So here the whole fruit or slices or pieces, they are first exposed to the fumes of burning sulfur inside a closed chamber known as sulfur box for 1 to 3 hours or in small airtight rooms. आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने fruits cut किया है, okay, and now they are putting them in these rooms. वहाँ पे sulfur fumes आते, sulfur fumes कैसे, by burning the sulfur, ओके, फ्यूम्स आते, दैट ऑल फ्यूम्स नीचे कहीं पे वो रहता है, दैट ऑल विल पास थ्रू दीज, ओके, देयर बाय ये सल्फ्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। नाउ सल्फ्यूरिंग प्रोसेस होने की क्या वजह से क्या होता है, these penetrate the fruit and act as pre-treatment by retarding the spoilage and darkening of the fruit. Now sulfuring जब करते हैं, जो फ्रूट का जो कलर है दैट वुड बी इंटैक्ट। जैसे आप एप्रिकॉट्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स खाते हो ना, साउथ में तो ये डबल का मीठा करके, डबल का मीठा नहीं, कुबानी का मीठा, उसमें ड्राइड एप्रिकॉट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो बिल्कुल जैसे एप्रिकॉट्स, वही मतलब
बिल्कुल शाइन, बिल्कुल कलर चेंज नहीं, कुछ नहीं, पर लेकिन वो ड्राइड होते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस सल्फ्यूरिंग प्रोसेस ओनली। ठीक है। फॉर मोस्ट फ्रूट्स 5 to 6 grams ऑफ सल्फर पर केजी ऑफ फूड इज एडिक्वेट। अगेन दिस हैज टू बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। सल्फर ज्यादा हो गया मतलब परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, सो दैट वुड नॉट बी एबल टू विल नॉट बी एबल टू मार्केट। कई बार ऐसा होता है कि अब जब उस तरह के फ्रूट्स खाते हैं ना, एक अलग सा टेस्ट आता है, वो टेस्ट सही नहीं रहता है ना, जैसे कि कुछ केमिकल लेडन फ्रूट्स खा रहे हो, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सल्फर। एंड फॉर मोस्ट वेजिटेबल्स वेरी रेयरली इट इज यूज फॉर वेजिटेबल्स, बट अगर यूज कर रहे हैं देन 10 to 12 ग्राम सल्फर पर केजी ऑफ फूड इज सफिशिएंट। नेक्स्ट आता है सल्फाइटिंग। जिन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को जिनको सल्फ्यूरिंग से प्रॉब्लम है या उसमें नहीं कर सकते, दोज कैन बी सेंट फॉर सल्फाइटिंग। सल्फाइटिंग में क्या है? Here same again sulfur is used, but in the form of sulfite salts like your potassium sulfite, sodium sulfite or सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, इनको यूज करके हम आफ्टर द ट्रीटमेंट विल गो फॉर ड्राइंग। So the fruits or vegetables is either soaked in a sulfite solution, or if the commodity is being blanched in water, sulfite can be added to the blanching water itself. Okay. Sulfiting must be controlled accurately to obtain the correct level of sulfur dioxide in the food. Very important. Too much sulfur dioxide gives the food an unpleasant smell and may be illegal according to local permitted levels. Okay. The strength of sodium metabisulfite solution is expressed as parts per million or milligrams per kg. So किस तरह से करते हैं? As per a conversion, 10,000 ppm sulfur dioxide is equal to 1% solution. So to achieve this, 1.5 grams of sodium metabisulfite dissolved in 1 liter of water will give you 1000 ppm, that is 0.1% sulfur dioxide. So as per the requirement, ये रेशियो के हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा। अगर 1% सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड का चाहिए तो 15 grams of sodium betasulfite in 10 liters of water. Okay, so according to the requirement this needs to be done. तो ये हो गया हमारा सल्फाइटिंग। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एंड एक और ये हो गया हमारा रेगुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डायरेक्टली प्रिजर्व करना, ईदर फ्रेश। फ्रेश में दो तरह के मेथड्स मैंने बोला है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज और मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। अदर देन दैट जो वैक्सिंग है, एडिबल कोटिंग है, ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। उसके बाद हमने देखा है किस तरह से उनको ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं या फिर फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं। दोनों में भी क्या क्या केयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करना है वो भी हमने देख लिया है। एंड नेक्स्ट वी हैव सीन, ये सारे हो गए हमारा, सॉरी सल्फ्यूरिंग एंड सल्फाइटिंग देखा, वो भी प्री ट्रीटमेंट है बिफोर ड्राइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो दैट उनका एक वो जो टेक्सचर है, कलर है, दैट ऑल कैन बी प्रोटेक्टेड। ये तो हो गया हमारा रेगुलर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब क्या है? उनका बिल्कुल आप उसका रूप ही चेंज करें। लाइक टोमेटोज का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या है? केचप्स और सॉसेस। ओके, वही फ्रूट्स का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या है? जैम्स, जेलीज, मार्मलेड्स एक्सेट्रा। सो वही दे ऑल फॉल अंडर प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स। तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ हियर, जो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं हाईलाइट करूंगी, ठीक है। जैम इज अ प्रोडक्ट मेड बाय बॉइलिंग फ्रूट पल्प with sufficient quantity of sugar to reasonably thick consistency, firm enough to hold the fruit tissues in position. Apple, sapota, papaya, plums, mango, grapes, jack, pineapple, banana, guava and pears are used in preparation of jam. In its preparation, about 45% of fruit pulp should be used for every 55% of sugar. मतलब एक 100 ग्राम्स का जैम है तो उसमें फ्रूट पल्प 45 ग्राम्स रहेगा, 55 ग्राम्स आपका शुगर रहेगा। ओके, द FPO, द फूड एंड प्रोडक्ट ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का एक है, उसके वो हर चीज में मतलब सल्फर डाइऑक्साइड कितना लेवल का होना चाहिए, परमिटेड लेवल, और भी कई सारे वो बोलती हैं, दैट दे हैव स्पेसिफाइड कि जैम में भी कितना क्या होना चाहिए। सो दे हैव द स्पेसिफिकेशंस ऑफ जैम एज पर इट इज 68.5% टोटल सॉल्युबल शुगर्स, 45% ऑफ फ्रूट पल्प, 0.5 to 0.6% ऑफ सिट्रिक एसिड पर एवरी 100 ग्राम्स ऑफ द प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट। उसमें ये होना चाहिए इंपॉर्टेंट। सेम यही वाला क्वेश्चन में पूछा गया था,
एक बार एफओ में पूछा था सेम क्वेश्चन ऑन द सेम लाइंस, एंड एक बार नाबार्ड में भी पूछा गया था। ओके, दूसरा है जेली। नाउ ये तो बॉयल फ्रूट पल्प से बनता है। इट इज सेमी सॉलिड प्रोडक्ट prepared by boiling a clear strained solution of pectin containing fruit extract which is free from pulp and after the addition of sugar and acid. A perfect jelly should be transparent, well set but not too stiff and not too runny also, and it should have original flavor of the product. द प्रोडक्ट अगर एफपीओ स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो द प्रोडक्ट शुड बी फर्म फ्रॉम डलनेस विथ लो लिटिल और नो सिनर्जी, दैट इज वीपिंग, बिल्कुल ऐसे लूज लूज नहीं होना चाहिए, एंड नीदर टफ नॉर रबरी, बिल्कुल हार्ड भी नहीं होना चाहिए. द एफपीओ स्पेसिफिकेशंस फॉर जेली इज अ फाइनल प्रोडक्ट शुड हैव 65% सॉलिड्स, 45% fruit extract and 0.5 to 0.75% acid. And guava, sour apple, plum, karonda, wood apple, papaya and jackfruit are rich in pectin and generally used for preparation of the jelly. Pineapple, strawberry, grapes, etc. can be used but only after addition of the pectin powder. So pectin ke bina it can't be used because these fruits are low in pectin content. So पेक्टिन पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर पेक्टिन रिच फूड्स के साथ ही जेलीज बना सकते हैं. तीसरा है प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स दैट कैन बी डन इज मार्मलेड. ना मार्मलेड इज सेम फ्रूट इधर जेली में या फिर जैम में, दोनों में फ्रूट पील को कट करके डालते हैं. ओके, so the term is generally used for the products made from the citrus fruits like oranges and lemons in which shredded peel is used as a suspended material. So बीच बीच में पीसेस आते रहते हैं. Citrus marmalades are classified into jelly marmalade and jam marmalade. FPO specifications for marmalade include TSS 65%, fruit juice 45% of the prepared product. Jelly marmalade मतलब jelly में वो pieces डालते हैं. Jam marmalade मतलब jam में वो डालते हैं. उतना ही फर्क है. It prepared from the clarified pectin extract, the same addition of shreds at about 62 grams per kg of the extract. Jam में भी उसी तरह से है, but here same as it of marmalade. Here the pectin extract of fruit is not clarified and the whole pulp is used. Like jam जैसे हम लोग whole pulp use करते हैं, same उसी तरह से. You must have done this, ना, जिसने भी BSc एग्रीकल्चर किया या BSc हॉर्टिकल्चर किया आप लोगों में, यू मस्ट हैव डन, फोर्थ ईयर में एक रहता है होम साइंस का एक बिल्कुल एक क्रेडिट सब्जेक्ट रहता है, उसमें यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड जैम्स, जेलीज, मार्मलेड्स. हमने तो प्रिपेयर किया था. मतलब पहली बार आई मीन था कि एक साइंटिफिक वे में प्रिपेयर किया. नॉर्मली घर में पेरेंट्स ऐसे बनाते हुए देखे थे, लेकिन इतने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतना कुछ कभी सोचा नहीं था. अच्छा, उन्होंने अंदाज से ये ग्लास, एक ग्लास का ये लिया तो 2 ग्लास, उस तरह से करते हैं ना घरों में. अभी तो मेजरमेंट्स आए, उस टाइम तो पुराने ज़माने में वैसे ही करते थे. 1 ग्लास ये डाले तो 2 ग्लास ये डाल दिया तो वो आधा ग्लास ये, उस तरह से. बट फर्स्ट टाइम जब वहाँ किया था, मतलब हर चीज़ उसमें मेजर कर करके ले रहे थे. एक अलग सा एक्सपीरियंस था, बट इट वाज गुड. तो हमने बनाया था, जैम भी बनाया था, जेली भी बनाया था, मार्मलेड्स भी बनाए थे. एवरीथिंग वी हैड ट्राइड इन आवर लैब्स, नॉट किचन्स, इन आवर लैब्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग. सो हर तरीके से हमने पोस्ट हार्वेस्ट पे जितने भी मेजर मेथड्स है हमने सभी कवर किया है. ठीक है, नाउ विल बी डूइंग सम एमसीक्यूज. है हमारे पास अभी 10 मिनट्स. यस. What is the effect of making a notch above or below a bud in notching, which is in horticultural practice? Especially fig में किया जाता है notching, right? ये हमने डिस्कस किया था. डे बिफोर यस्टरडे हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो वो भी आज कर रही हूँ. कुछ आज कर लेते, कुछ कल कर लेते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. यस, आई नीड आंसर्स. कहाँ गए सभी? What happened? Why isn't anyone answering? इसका आंसर है बी. A notch above the bud induces growth bud formation while a notch below induces fruit bud formation. हमने देखा था ना, बड छोटा सा एक नॉच टाइप का देते हैं ऐसे कट करके. सो इससे क्या है, that will help.
ऊपर अगर बड, डोरमेंट बड के ऊपर दिया तो इट विल इंड्यू ग्रोथ बड फॉर्मेशन, मतलब ब्रांच टाइप का आ जाएगा। एंड इट नीचे दिया तो रिप्रोडक्टिव, दैट इज फ्रूट बड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यस, वन सेकेंड, यस। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ बेंडिंग अ ब्रांच डाउनवर्ड इन फ्रूट कल्टीवेशन? हमने देखा कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हमने देखा था, वन ऑफ दैट इज बेंडिंग। यस, व्हाट हैपेंड? बस एक आधे बच्चे ही हैं, कितने सारे तो ज्वाइन हुए। ट्राई टू आंसर, डोंट वरी, गलत भी हो तो आई एम हियर टू गाइड यू। यस, यस, इट एनहांसेस द कार्बोहाइड्रेट। जहाँ पे बेंड होता है उसके नीचे ही, मतलब यहाँ बेंड हुआ है ये लीव से, तो यहाँ पे कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट का ना एक्यूमुलेशन होता है, इससे क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो तो वाइड होता है, दैट विल इमिडिएटली लीड टू इंक्रीज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। एक शॉक टाइप का दे देता है प्लांट को। ठीक है, यस। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्मडजिंग इन फ्रूट कल्टीवेशन? यस, ये स्पेशली फिलीपींस उस कंट्रीज में किया जाता है। मैंगोस में सबसे कॉमन है स्मडजिंग। मैंने फोटोज भी दिखाया था किस तरह से स्मडजिंग होता है। जब नॉर्मली आप जो वुड इन सबको जलाते हैं तो गैस, पूरा स्मोक निकलता है। ओके, दैट स्मोक कंटेन्स एथिलीन गैस, so उससे क्या है, इट विल इंड्यूस ऑफ सीजन फ्लावरिंग। जो डोरमेंट बड्स होते हैं अगले सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, दैट विल नो स्वेल हो जाते हैं, इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप द बर्निंग द स्मोक एंड आफ्टर दैट इट विल बर्स्ट इनटू फ्लावरिंग ऑफ सीजन में। ठीक है, सी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रूट प्रूनिंग इन फ्रूट कल्टीवेशन? रूट प्रूनिंग क्यों करते हैं फ्रूट कल्टीवेशन, फ्रूट ऑर्चर्ड्स में? व्हाट इज द रीजन? इट इज टू इंड्यूस फ्रूटफुलनेस एंड कंट्रोल द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, वो इम्प्रूव करने के लिए वी गो फॉर रूट प्रूनिंग। ओके, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द अम्बे बहार साइकिल? तीन तरह के बहार ट्रीटमेंट होता है, वन ऑफ द ऑपरेशंस इन दैट बहार ट्रीटमेंट इज रूट प्रूनिंग। ओके, लाइक योर हस्त बहार, अम्बे बहार, मृग बहार, डिफरेंट सीजन्स के लिए है। नाउ यू हैव टू टेल मी कौन सा ये स्टेटमेंट अम्बे बहार के लिए है। वो एक मैंने टैबुलर फॉर्म में दिया था, प्लीज उसको देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है। ओके, हियर इट इज, its irrigation is withheld in November and December, suitable for hot and dry regions with a summer monsoon. ठीक है, which fruit trees commonly undergo bahar treatment to regulate flowering? यहाँ एग्जाम्पल्स है, यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दिस फॉलोइंग फ्रूट इज कहाँ पे कॉमनली बहार ट्रीटमेंट देते हैं। एंड आपके आंसर देने के बाद मैं बताऊंगी एक सिंपल सा हिंट। ओके, बहार ट्रीटमेंट जनरली सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स में ज्यादा किया जाता है। एंड यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन से हैं? सब ट्रॉपिकल, ये सारे ट्रॉपिकल वाले हैं, इसमें थोड़ा टेम्परेट थोड़ा ट्रॉपिकल मिक्स्ड है, ये भी ये फिर टेम्परेट वाले हैं। दीज आर द सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, पोमग्रेनेट, मौसम्बी, संतरा, ये महाराष्ट्र एमपी, ये जो बेल्ट है वो पूरा सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। पोमग्रेनेट का रिसर्च स्टेशन भी वहीं पे है महाराष्ट्र में, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट इट इज सब ट्रॉपिकल नेचर। ओके, yes, why is it necessary to provide pollinators in deciduous fruit orchards? हमने ये डिस्कस किया था, deciduous fruit orchards में पॉलिनेटर्स अलग से लगाना पड़ता है, फॉर एवरी 3 rows एक ट्री होना चाहिए वहां पे। why?
यस, कई बार ये सेल्फ इनकम्पैटिबल वेराइटीज होते हैं, मतलब उनका पोलन वो पॉलिनेट नहीं कर पाता उनके फ्लावर को, सो सम अदर वेराइटी हैज टू बी सेम दिस थिंग but different varieties. So here for that they use that. Which characteristic is essential for trees used as windbreaks in orchards? कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पढ़ा था ना विंड ब्रेक्स शेल्टर बेल्ट्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, ये इजी लेवल क्वेश्चन है. Yes, it is erect, tall, quick growing and drought resistant. Which planting season in India is best suited for evergreen fruit trees like mangoes and citrus? एवरग्रीन जैसे ऑर्चर्ड्स जब हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेसिडियस के लिए अलग सा टाइमिंग से लाइक योर फेब मार्च टाइप का, एंड एवरग्रीन के लिए अलग है जिनका है मॉनसून से पहले, मतलब जून अगस्त बेस्ट टाइम रहता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग? इरिगेशन डेफिनेशन, irrigation management, irrigation scheduling, all these are very important topics. Here it is to apply what? To optimize, okay, right. नहीं, ये नहीं है. To optimize crop growth and yields while minimizing the water waste. So in इस तरह के हमें पानी scheduling करना चाहिए where crop growth भी सही से रहे, at the same time water wastage भी कम रहे. Okay. Yes, which irrigation method involves dividing land into small basins surrounded by levees to control water flow? Levees मतलब small bunds. Yes, it is check basin irrigation. How should furrows be designed for sandy soils to minimize water percolation? हमने देखा था क्लेई सॉइल्स के लिए किस तरह से होना चाहिए, सैंडी सॉइल्स के लिए किस तरह का शेप होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए फाइन सैंडी सॉइल्स के लिए एंड कोर्स सैंडी सॉइल्स एंड क्ले सॉइल्स के लिए बिटवीन टू फरोस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स. ओके, हियर व्हेन वी टॉक अबाउट सैंडी सॉइल्स, उनका जो फरो डिजाइन है दैट शुड बी नैरो एंड डीप वी शेप्ड होना चाहिए. ओके, वही क्ले सॉइल्स के लिए वाइड एंड शैलो. विच इसलिए कॉरुगेटेड फरोस जो हमने डिस्कस किया था वो स्टिकी सॉइल्स क्ले सॉइल्स के लिए बहुत यूजफुल है. Which irrigation system is a modified version of furrow irrigation suitable for closely spaced crops like maize and sorghum? Which irrigation system is a modified version of furrow irrigation suitable for closely spaced crops like maize and sorghum? Yes, it is furrow irrigated raised bed method. Which irrigation method involves dividing land into long parallel strips separated by low ridges? Yes. Which irrigation method involves dividing land into long parallel strips separated by low ridges? Long parallel strips. लैंड को ही हम लोग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग, एंड यहाँ से पानी देते हैं. दिस बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, border strip, these plots are divided by small low ridges or the levees. Okay, what is the primary advantage of surge irrigation? What is the primary advantage of surge irrigation? सर्ज इरिगेशन फरो इरिगेशन टाइप का ही होता है, बट उसका जो यूज करने का तरीका है वो अलग है बस. हियर इसका इट मिनिमाइजेस डीप पर्कुलेशन एंड रन ऑफ लॉसेस, इंप्रूविंग द इरिगेशन एफिशिएंसी बिकॉज ऑन एंड ऑफ साइकिल्स पे हम लोग पानी छोड़ते हैं.
Okay. Yes. Which factor is essential for crops to receive moisture through upward capillary movement from the water table? जब वाटर टेबल के थ्रू मतलब सब सरफेस इरिगेशन जहां पे भी यूज करना है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल फैक्टर्स होना जरूरी है. व्हाट आर दोज एसेंशियल फैक्टर्स? यस. It should have permeable soil in the root zone with impermeable substratum below the water table so that water percolate नीचे ना चला जाए. Okay. And water table इसका shallow होना चाहिए. Okay. तो ये गलत है. इम्पर्मिएबल ये भी गलत है. कंटिन्यूस सरफेस इरिगेशन का तो बात ही नहीं आता क्योंकि नीचे से ही हम लोग ले रहे हैं वाटर टेबल से ही. ठीक है. सो इट इज डी. Which irrigation method uses perforated pipes laid below the soil surface to maintain a suitable water table just below the root zone? Yes, yes, it is subsurface irrigation. Okay. Which irrigation method applies water under pressure in the form of a thin spray resembling or depicting rainfall? सेम क्वेश्चन आया था एएफओ में एंड नाबार्ड में. यस. जहां पे भी डिपिक्टिंग रेनफॉल इट वुड बी स्प्रिंकलर इरिगेशन. ठीक है. हाउ डज द लो एनर्जी प्रेसिशन एप्लीकेशन सिस्टम डिलीवर वाटर टू क्रॉप्स? लेपा एंड लेसा दोनों हमने डिस्कस किया था. यस. तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट लेपा. हियर हाउ इज इट डन? एक ही जगह से द वाटर विल बी डायरेक्टली ऊपर लेके जाते हैं एंड दैट वुड बी ड्रॉप ट्यूब्स. ड्रॉप ट्यूब से डायरेक्टली टू द crop through the sprinkler arm. So it is by applying water directly to soil through drop tubes extending from the sprinkler arm. जो sprinkler arm में पानी जा रहा है यहाँ से एक ही जगह से उठेगा. यहाँ से जब जाएगा वहां से डायरेक्टली ग्रेविटेशनल पुल से पानी पहुंच जाएगा. What is fertigation? Yes. Yes, it is application of fertilizer or chemicals through irrigation water. No, it is A only. One second. This is A. Okay. Which irrigation method is best suited for areas with water scarcity, marginal water quality, undulating topography, restricted soil depth, and expensive labor? Yes, it is drip irrigation. Okay. Which irrigation strategy involves allowing crops to sustain some degree of water deficit and yield reduction to optimize water use efficiency? तो वाटर यूज एफिशिएंसी को हम लोग हाई पे रखने के लिए समटाइम्स वाटर डेफिसिट वाला भी करते हैं. दैट इज जो नॉन नो सॉरी
ग्रोथ, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, उसी टाइम पे वाटर देके बाकी टाइम पे विथहेल्ड करते हैं वाटर, सो दैट एक ड्राइनेस आती है रूट्स में भी नीचे पूरा, एक ओनली सम पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल वुड बी वेट. Yes, it is deficit irrigation. Okay. Which irrigation technique involves subjecting one half of the root system to dry conditions while irrigating the other half, alternating between the two halves on a 7 to 14 day cycle? Yes, what is that? Yes, what is that? एक्चुअली इसका डेफिसिट इरिगेशन के साथ साथ पार्शियल रूट ड्राइंग भी हो, पार्शियल रूट ड्राइंग भी पूछा जा सकता है. आई फॉरगॉट टू ऐड. ठीक है. यस. हियर here we're talking about partial root zone drying, regulated deficit irrigation. Okay. Okay. तो आफ्टर दिस यहाँ पे मैं क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ड्रेनेज एंड उसके ऊपर वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. यस, नाउ द फोरम इज ओपन फॉर योर क्वेरीज, क्वेश्चंस एक्सेट्रा. आई नो आपका नेक्स्ट क्लास है 7:30 को. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. यस, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, सजेशंस, एनीथिंग, ऑल आर वेलकम. Preservatives, what kind of preservatives were used? प्रिजर्वेटिव्स का मैंने इसमें ऐड नहीं किया है ना, माइट हैव फॉरगॉट. सो मैं प्रिजर्वेटिव्स का एक नोट डाल देती. इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं. नेचुरल में क्या है, आप लोग सॉल्ट, शुगर, इस तरह से नेचुरल चीज़ों में, या विनेगर, नेचुरल विनेगर, उसमें भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं आइटम्स को. और आर्टिफिशियल लाइक सोडियम बेंजोएट एक्सेट्रा दैट कैन बी यूज टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स. ओके. एंड उसका मैं एक स्लाइड डाल दूंगी अगले क्लास में. मैं भूल गई थी, मुझे भी लास्ट में याद आया था जब मैं कंटेंट देख रही थी प्रिजर्वेशन मेथड्स में. ओके, आई विल डू दैट. नेक्स्ट हमारा है टॉपिक फाइटो हार्मोन्स. उससे पहले एक बार ये कवर करके एक स्लाइड, देन विल गो टू द फाइटो हार्मोन्स टॉपिक. ठीक है. ओके. ठीक है, वाइंडिंग अप द सेशन देन. और कोई क्वेरीज तो नहीं है? ओके, आई कांट सी एनी. सो वाइंडिंग अप द सेशन. थैंक यू वेरी मच अगेन. सो पेशेंटली आप बैठे, एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. विल मीट टुमारो देन, सेम टाइम.